Hello and Assalamu alaikum, and welcome to yet another episode of Career Talks with CTU, a podcast series aiming to become the guiding light to pursue your dream career goals and aims. My today's guest is no less than a maestro in himself, someone with a very diverse career portfolio that will leave you in awe of his versatility. After receiving his early schooling in Dubai, he completed his high school years from the City School PF chapter and later went to Switzerland to pursue his diploma in hotel, motel and restaurant management. From the same institution, Les Roches, he received his bachelor's degree in entrepreneurship. Very early started off his vocational career and as an intern in the food and beverage service in the Hotel Caprice, Switzerland, and later became a kitchen trainee in Ramada Continental Hotel. Very soon after, he was working as a kitchen chef in one of the cafes of Switzerland. Fostering and owning to the very philanthropic aspect of his personality, he is also a member of the Board of Trustees of Sayyidina Tahir Saifuddin Memorial Foundation, where he supports the education of the underprivileged in helping them acquire scholarships and also funding critical medical emergencies and major operations. Later on joining Resichem Private Limited, known to be one of the leading manufacturers of high-quality construction material and chemicals in Pakistan, he joined the team as a sales executive. Soon after, became an assistant sales manager. And climbing up the ladder, became the head of sales for their various product segments and applications. It was right over at this point where his career transitioned into him becoming a head of marketing and brand management, particularly looking into the areas of procurement. And today, as the CEO of this entity, looking after the company's overall operations, looking after their strategic planning and delegation, their organizational structure and strategy, and most importantly, profitability and the company's growth. With a very enriched skill set, ranging from leadership to business development, from technical skills to sales expertise, from digital marketing and communication to operations and procurement, and not to forget, hotel management and hospitality. It is my honor to welcome a very enterprising CEO of Resichem Private Limited, Mr. Hussain Zulfikar. Assalamu alaikum, sir. Ji, walaikum assalam. First of all, thank you so much for such an introduction. I don't think I've ever been introduced like this before. Really? Yes. Thank you so much. You deserve all that. You deserve all that. It has been a trajectory. When I was studying it, it was extremely enterprising, very multi-layered. Yes. I will take you back a little in the hindsight because our audience is primarily going to be students Of course. who are studying and who are now very fresh in their own professional careers also. Was this a very conscious decision when you were, let's say, a high school student in City School PF chapter, that hospitality and hotel management is going to be something? Because back in those days, that was a very a very rare field. Anybody would seldom even think of hotel management. People now pursue because now there are inroads created in Switzerland, Malaysia, even Sweden, when they get into the Scandinavian areas for hotel management practice. But back in those days, that was not even, sort of one of the fields that one could possibly think of. Was it something innate that was coming from within? Or was it you under some sort of an inspiration and influence? Or did somebody direct you? Or it came very naturally to you? So just
take us there. अच्छा चले, अब इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो बड़ा ही एक मल्टी लेयर्ड सॉर्ट ऑफ अ सवाल है, और ये सवाल जब आप मुझसे पूछती हैं तो इट मेक्स मी वांट टू डाइव डीप इनसाइड ऑफ माई सेल्फ। तो अब इसका अगर एक नटशेल में जवाब दूँ तो मैं ये कहूँगा कि मैडम, हम चलते गए और कारवा बनता गया। तो जब हम, तो एक चीज़ तो मैंने थी, जब ज़ाहिर है जब हम स्टूडेंट्स होते हैं हम इतनी दूर की नहीं सोचते, ठीक है ना। इन दोज डेज आई वाज जस्ट अ स्टूडेंट, आई वाज आउट विद फ्रेंड्स, ओए लेवल्स के चले एग्जाम्स है वो भी कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे। बट एवर सिंस चाइल्डहुड आई वुड से आई हैड सॉर्ट ऑफ अ वेरी हैप्पी सॉर्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी। आई वॉज नेवर वेरी मच स्टूडियस इन दोज डेज, ठीक है। बस ठीक है, ग्रेड्स आ जाते हैं, आई वॉज समवेयर इन द मिडल ऑफ द क्लास, पास हो रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, चलते रहो। सो दिस वॉज बेसिकली, जब ओ लेवल का भी टाइम था तो ओ लेवल कर लिया था। आई थिंक मेरा ओ लेवल में सिर्फ एक ही ए आया था उस ज़माने में। आज हम सुनते रहते बच्चों के, मैं उस वक्त भी सुनता था किसी के 7 ए हैं, 8 हैं, उस वक्त ए स्टार नहीं होता था, एट दैट टाइम इट वॉज ओनली एन ए, राइट। तो मैं सुनता कर रहा था, यार किसी के इतने ए आ रहे, इतने आ रहे। मैंने कहा चलो ठीक है, आते हो गए यार, मेरा तो इस्लामियात में भी सी आया था। बट इट वॉज ऑलवेज लाइक चले ठीक है, हम चल रहे थे। सो माई फादर, I believe even in those days and even today is sort of a person who can sort of see 20 years ahead of its time. Okay, great. तो उन्होंने उस वक्त मेरी ये पर्सनालिटी चेक की कि हंसता खेलता रहता है, मुस्कुराता रहता है, इसको हॉस्पिटैलिटी के अंदर डालो। तो नया उन दिनों में इंटरनेट आया हुआ था। तो इंटरनेट जब आया तो हमने गूगल कर लिया। तो ही वॉज ऑफ द माइंड कि तुझे दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटैलिटी स्कूल्स में डालना है मुझे। ओके, आई वॉज लाइक ठीक है, ओके। नया गूगल आया था, आई वेंट टू गूगल, आई रोट डाउन व्हाटएवर होटल रेस्टोरेंट मैनेजमेंट स्कूल्स दैट वर आउट देयर, एंड आई वाज लाइक यार अब्बा ये वाला स्कूल ठीक लगता है। ही लुक्ड इनटू द होल प्रोफाइल एंड द ले रॉश, यस ऑफ कोर्स। सो ही लुक्ड इनटू द, ठीक है कोई मसला नहीं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो। अच्छा, आई ऑल्सो हैड वन मोर थिंग, मुझे AS लेवल में एडमिशन के बाद मुझे, बिकॉज आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, सो माई मेन सब्जेक्ट्स वर बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग, राइट। And I knew that the A-level economics and all of those subjects were really difficult, difficult. Yes. So what I've actually done is O-level के बाद AS level किया, which was almost like a repetition of the O-level course. और AS करने के बाद मैं सीधा स्विट्जरलैंड चला गया. Okay. So I tried actually avoiding those difficult subjects and sort of elevating myself onto a university. Because what you did was a diploma. What I did over there was first I did a diploma for 3 years. Yes. That diploma was in hotel and restaurant management with a specialization in food and beverage. Right. And after that, I did my BBA in entrepreneurship. And even in Switzerland, the BBA had 3 routes. It had again finance, it had marketing, and it had entrepreneurship. Okay. So again, having a consultation with my father back in those days, he was of the nature कि यार, and again being from a business community and being from a business family. जी. So what we did was he sort of encouraged me to pursue entrepreneurship. So in those days I said, okay, fine, this sounds like, a very good sort of an option. So that is when I actually, and entrepreneurship की जो lessons थे उसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, even back then, कि वो आपको क्लासरूम में बैठ के नहीं बताते कि entrepreneurship होती क्या है, क्योंकि एक entrepreneur की सबकी अपनी एक बड़ी यूनिक और एक इंडिविजुअल जर्नी होती है। यू कैन नेवर से कि यार एक फाइनेंस का रूट होता है ना, तो बड़ा प्री प्लान रूट होता है, ठीक है ना। ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो रूट है वो किसी तरीके से कभी भी प्री प्लान नहीं हो सकता, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर की अपनी एक जर्नी होती है। यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो तो वहाँ पे हमें क्या करते थे, हमें केस स्टडीज दी जाती थी और हमें प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे, ठीक है। और वहाँ पे हमें समझाया जाता था कि इस प्रोजेक्ट में ये सिचुएशन का आपने अपना एक पर्सनलाइज्ड एनालिसिस देना है। एंड the beautiful thing about whatever those situational analysis was that no two analysis or no two solutions can ever be the same, because all of those analysis will come from within you, and you will also have to accommodate your personality with it as well. Right. ठीक है ना? That is the main crux of entrepreneurship. This is the experience of your bachelor's we're talking. Yes, this is the experience of my bachelor's that we are talking. और अच्छा, वहाँ पे फिर क्या था कि 6 महीने का, क्योंकि पूरा सेमेस्टर था, so 6 महीने के अंदर what you had to come up with was a real world business proposal that could be implemented in the real world. Right. ठीक है ना? So again, we had a group of 6 people. Now all 6 of us had to come up with a real life business plan which would actually give a good payback over a certain period of times, and that
would be evaluated by a jury of 6 to 7 teachers. Okay. And that was the entire course. So within that period of 6 months, the 6 of us meticulously planned each and every aspect of a potential business that we were going to go into. Right. हमें इन्वेस्टमेंट से लेके अगर लेट सपोज जो हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था, एंड वी आल्सो हैड टू कम अप विद अ कॉन्सेप्ट बाय द वे. सो द कॉन्सेप्ट दैट वी केम अप वाज अ क्रूज. तो वो क्रूज की टेबल क्लॉथ कैसी होगी, उसमें कटलरी कैसी होगी, उसमें टेबल कैसे होंगे, हम सेल्स कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा और इन्वेस्टर को उसका प्रॉफिट कैसे वापस करना है. तो शुरू से लेके आखिर तक हर चीज़ मेटिकुलसली प्लान हुई थी और एक इतना मोटा डॉक्यूमेंट बनता है वो 6 महीने के आखिर में, जिसे हम बिजनेस प्लान कहते हैं. So that was the actual education that I went through in Switzerland, and then I came back to Pakistan. And a very hands-on, I think, very practical experience. Was this bachelor's in Le Roche for 6 months? No, the diploma there was the 2 साल में एक associate diploma आता है. उसके बाद जब आप तीसरा साल कंप्लीट करते तो एक डिप्लोमा मिला था, और चौथे साल पे एक BBA था. Right. After that, I could have pursued an MBA. I was of the opinion that I wanted to go to the Cordon Bleu in the UK and pursue my passion for culinary arts. As you can see, मुझे खाने पीने का बड़ा शौक है. ठीक है जी. तो yes, तो मैं कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि खैर coming into Pakistan, that's a different facet of my personality. But I wanted, but my father was of the opinion that you need to come back and sort of join the family business. So although LinkedIn पे लिखने के लिए तो थोड़ा सा मुझे बताना पड़ता है कि it was started off as a sales executive and everything, but and I've had this discussion with my father as well, right, when I was about to graduate. Now in this discussion, my father had already had an established business. My father was representing a lot of these petrochemical interests in Pakistan, right, and he was indenting for a lot of these companies and representing them in Pakistan. बट आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि अब्बा आपका चलता हुआ कारोबार है, अब इस चलते हुए कारोबार में मैं क्या ही वैल्यू एडिशन कर लूँगा. बिल्कुल. ठीक है जी. सो फिर हमने डिसाइड किया, मेरे अब्बा कहते एट दैट टाइम माई फादर वॉज कि यार मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स में, ये प्लास्टर होता है एंड दिस एंड दैट, एंड ही ट्राइड एक्सप्लेनिंग इट टू मी एंड ही वॉज लाइक यार अब मैं मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहता हूँ. एंड ही, एज आई सेड बिफोर, माई फादर, मैं आज भी कहता हूँ अपने टाइम से 20 साल आगे का देखते हैं. ठीक है. तो उन्होंने मुझे कहा था, उस वक्त भी मुझे याद है, बेटा एजेंसी का बिजनेस है, प्रिंसिपल्स सारे बाहर होते हैं. दैट व्हेन आई ग्रेजुएटेड वाज 2010 एंड ही वाज लाइक यार अब कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गई है. ठीक है. तो मुझे कहते थे कि यार पहले तो फैक्सेस आते थे, टेलेक्स होता था, थोड़ा बहुत ईमेल और इंटरनेट हल्का बुल्का चलता था, लेकिन फिर भी कंपनीज को पाकिस्तान के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए होते थे. अब वो कह रहे, अब फिर उन्होंने मुझे उस वक्त कहना शुरू किया यार अब कम्युनिकेशन इतनी फास्ट हो गई है कि अब ये इनको जो है ना हमारे जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना. नाउ द कस्टमर इज savvy enough to communicate directly with the factory, right, directly with the manufacturer, so now they don't need a middleman in between. So he was of the, until and unless वो कोई लॉजिस्टिकल या वेयर हाउसिंग या इस तरह की कोई सपोर्ट देता हो जो कि वैल्यू ऐड करती हो पूरी सप्लाई चेन में, simply communication itself is not going to add any, have any value addition. Right. So exactly 2010 में मैं आया. So then we started off with Resichem. Initially Resichem उन्होंने पहले बना ली थी. Resichem का मफहूम रेजिन सिलिकॉन केमिकल्स है. Okay. So at that time my father used to do trading of all of these chemicals. And then with the passage of time, now we, of course, we are a full-fledged manufacturer. But now, in 2010, we came to the decision that we have to become a manufacturer, right? So we went to Europe. We completed a technology transfer sort of a thing. And technology transfer करने के बाद of course, एक अब्बा के पास भी एक महदूद budget था. तो at that time, my father, again, seeing his foresight, initially did not invest much in manufacturing equipment, did not invest much in a factory, but invested a lot in his lab and his R&D, which back in that time, at least for me, मैंने कहा यार अब्बा ये लैब का इतना महंगा इक्विपमेंट आप ले रहे हो, आप इतनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में पैसा कर, अब्बा फैक्ट्री कब लगाओगे? So I was a little bit, थोड़ा सा मुझे, again I was young and inexperienced. Yes. So that investment in R&D and technology is paying off today. उसका रिटर्न आपको पहले दिन नहीं मिलेगा. जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि यार एजुकेशन लेने के बाद फौरी तौर पे नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता. ये आपकी ट्रेनिंग हो रही है, ये आपको आने वाले 10 साल में काम आएगी. फौरन इसका हमेशा रिजल्ट नहीं मिलता.
ठीक है जी. तो एग्जैक्टली दिस वाज हिज माइंडसेट. एंड देन वी वेंट टू जर्मनी, वी गॉट दिस टेक्नोलॉजी, और हमने एक छोटी सी 2 कमरे की फैक्ट्री से शुरू कर दिया. अच्छा, अब जो फंड्स थे ना, वो इनिशियली तो सारे के सारे टेक्नोलॉजी में खर्च हो गए. अच्छा, जब मैं कंपनी में नया नया आया था, दिस इज़ अ लिटिल बिफोर दैट टेक्नोलॉजी, जब ये ट्रेडिंग किया करते थे, तो मुझे आज भी याद है कि अगर मिसाल के तौर पे कंपनी में 10 रुपये का रेवेन्यू है ना, तो 16 रुपये का तो सिर्फ खर्चा हुआ करता था जब मैं रेसिकेम में आया था. ठीक है जी. तो अब मुझे भी समझ में ना आए, थोड़ी छोटी सी एक कंपनी थी, आई वॉज ऑल्सो लिटिल आउट ऑफ प्लेस. सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज, जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम नजर आते थे ना, तो उस वक्त मैं उन लोगों के साथ जरा हैंड्स ऑन अपनी, चूंकि ट्रबल शूटिंग करते थे. अच्छा, ये ट्रबल शूटिंग का जो एक्सपीरियंस है मुझे स्विट्जरलैंड से मिला था, बिकॉज द फर्स्ट डे व्हेन आई लैंडेड इन स्विट्जरलैंड, अच्छा माशाल्लाह से हमारे जो पाकिस्तान इंडिया से जो बच्चे जाते हैं ना, और ख़ास तौर पे हमारी तरह जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के बच्चे जाते हैं, उन्होंने कभी उठ के घर से कभी खुद से पानी भी नहीं पिया होता जी. तो जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें सारे काम जब खुद करने पड़ते हैं तो बहुत मुश्किल होती है जी. अच्छा, मैं तो गया ही होटल एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट में था. So you were already, of course, I did not only had to take care of myself, I had to take care of a restaurant with 40 other guests. Yes sir. ठीक है ना. So I had to pick up their plates as well. I had to wash their dishes as well. If I was working in a hotel, I had to clean their beds as well, along with my own. So, and again cook for them and all of those things, you know, and of course comes with the territory. And the basic जो सबसे पहले जो मुसलमानों में भी कहा जाता है सफाई निस्फ ईमान है, सबसे पहला फोकस ही आपकी हाइजीन पे होता है और सफाई के ऊपर होता है. I mean cleanliness is half the game in hotel and restaurant, in the hospitality business. ठीक है जी. सफाई नहीं होगी, हमारे पाकिस्तान में खाना अक्सर बहुत अच्छा होता है, सफाई नहीं होती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन ओवरऑल दुनिया में अगर आपकी सफाई अच्छी है, ठीक है, तो फिर आपका रेस्टोरेंट चलेगा, आपका होटल चलेगा, आपका बिजनेस चलेगा. इफ इट्स नॉट क्लीन देन यू कैन फॉरगेट अबाउट हैविंग अ सक्सेसफुल बिजनेस. It all starts with there. इट ऑल स्टार्ट्स विद क्लीननेस. और दीन का भी हिस्सा है कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है. बिल्कुल ठीक हो गया. तो अब क्या हुआ कि एज आई वाज सेइंग, तो वो हैंड्स ऑन जो एक एटीट्यूड था ना, वो शुरू दिन से स्विट्जरलैंड में आया. मेरा दोस्त हमेशा कहता था भाई क्या बावर्ची बनने जा रहा है. ठीक है, मुझे कहते थे अच्छा, मैं बड़ा एंजॉय करता था. आई नेवर, इट्स स्टिल अ टैबू हियर. लेकिन मैं सबको कहता हूँ कि भाई देयर इज नो, कोई हकारत वाली नौकरी नहीं होती, कोई हकारत वाला काम नहीं होता. Absolutely not. ठीक है जी. आज मेरे पास अगर कोई मेरी फैक्ट्री में भी स्वीपर काम कर रहा है, वो उतना ही जरूरी है जितना मैं हूँ. बिल्कुल. ठीक है ना जी. अच्छा, जब कंपनी बनी थी तो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, चूंकि जाहिर है कंपनी फॉर्म करनी हो, तो मुझे पहले दिन से CEO बना दिया था. अच्छा, ठीक है जी. तो पहले दिन में CEO नहीं था, मैं चीफ एवरीथिंग ऑफिसर था. ठीक है जी. चीफ एवरीथिंग ऑफिसर जो है वो लॉजिस्टिक्स में अगर सुजुकी का टायर पंचर हुआ है और रास्ते में अगर डिलीवरी टाइम पे नहीं हुई, तो वो टायर भी देखेगा, और जो बड़े से बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजन है उस पर भी वो पार्ट ले. बिल्कुल सही. ठीक है जी. बिल्कुल. तो जब कंपनी छोटी होती है उस वक्त एक एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ज़ाहिर इट वाज अगेन अ फैमिली बिजनेस एट दैट टाइम, देन लेटर ऑन व्हेन वी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग एंड वी गॉट इन एन इन्वेस्टर एंड एवरीथिंग. ठीक है, व्हेन वी एक्चुअली हैड अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, that's a different story altogether. But जब आप खुद से कोई काम करो तो you're chief everything officer. Absolutely, yeah. You have to look after everything. Yeah. Exactly. So that's your product. That's your product. That's your baby, which eventually has to grow into something, right? वो उस टाइम को देखो और आज देखो तो 14 साल में अल्हम्दुलिल्लाह we are exporting now from Pakistan. ठीक है जी. Not only Pakistan, we are a market leader in certain category of products that we are doing in. आज से अच्छा, अब यहाँ पे तो ये हो गया. अच्छा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गई, तो जब जर्मन्स हमें टेक्निकली ट्रेन करने आए तो उस वक्त मैं उनके साथ भी रहा. अच्छा, शुरू में जब मैं कंपनी में गया तो पता चलता था सर सेल ही नहीं हो रही, खर्चे ज़्यादा, आमदनी का. मैंने कहा अच्छा चलो यार सेल कर लेते हैं. ठीक है, आई वेंट एंड दिस इज़ वे, और मैं हमेशा कहता हूँ अ गुड बिजनेस पर्सन एंड अ गुड एंटरप्रेन्योर has to be a phenomenal marketeer and a phenomenal salesperson. Absolutely, yes. Without that, क्योंकि देखिए अगर एक इनकम स्टेटमेंट को आज आप स्टडी करते हैं ना, तो इनकम स्टेटमेंट के सबसे ऊपर टॉप लाइन आती है जो रेवेन्यू की होती है. If you cannot stimulate revenues, exactly, then you know what's going to churn. Exactly. जब पैसा ही नहीं होगा तो अगले खर्चे कहाँ से पूरे होंगे. बिल्कुल सही. ठीक है जी. तो फिर क्या हुआ, तो what immediately शुरू में तो ये सारी चीज़ें हुई, फिर पता ही है, फिर इवेंचुअली आई फिगर्ड आउट यार होता नहीं है. अच्छा भाई, अब जब मार्केट में गए तो पता, तो आइडिया तो था कि अपना टेक्निकल प्रोडक्ट है, लेकिन अगेन शुरू में कहता देयर इज़ अ सर्टेन रिलायंस ऑन पीपल, राइट, कि यार ये मेरा सेल्स का बंदा है, ये मेरा टेक्निकल बंदा है, सो ऑन सो फॉर, यार इसको पता होगा, इसके थ्रू मैं ये कुछ ना कोई चीज़ अचीव कर लूँगा. सो एज आई वाज सेइंग कि जब जाहिर है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, तो वो लॉजिस्टिक्स में सुजुकी वाले के साथ बराबर में बैठ के डिलीवरियाँ करने से लेके
Then I eventually started, in the second month or so, I पता समझ में आ गया कि यार रेवेन्यू का मसला है. रेवेन्यू कहाँ से आएगा? सेल्स से आएगा. सेल्स कस्टमर के पास से आएगा. अच्छा, सो नॉर्मली बिजनेस हमारे मॉडल में जो बिजनेस मॉडल है, नॉर्मली द कंसल्टेंट व्हेन ही इज डिजाइनिंग अ बिल्डिंग विल रिकमेंड अ प्रोडक्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ. And sorry to interject, it's a B2B business. We have a lot of different streams. So Okay. mainly B2B, yes, but B2C as well. Would be the customer who's actually making his own home or his own building. For us, that would be the customer, right? Normally when we are talking about B2B businesses, both the buyer and seller has complete knowledge of the product, and there is very little educating that needs to be done. In terms of B2C, the customer, the end user, does not necessarily know the product. So we have to educate the customer as well on our product. That is why I call it B2B and B2C at the same time as well. Because when I'm speaking to a consultant, he is very well versed with his discipline. But when I'm speaking to a homeowner or a builder or somebody who is putting an investment into a building, that would be B2C. So what was the lapse in sales? Why was the company not generating enough sales? And what did you tap into that boosted that? सबसे बड़ी बात ये कि my father already had a very successful business and had a very successful thing going. Whenever you, अच्छा हमारे एक होता है कि लोग business शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उस पे a business, in order for it to succeed in the initial days, needs blood, sweat and tears. So initially that is what was missing, because of course my father himself, being a very accomplished person, had all of these things with him in a business that was generating decent enough revenue. And even if this small business makes a bit of a loss, he can cover the losses. So in those days, he did not really put much focus into it. Okay. Right? And it is a very big misconception कि यार मैं कारोबार शुरू कर दूंगा. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोग कहते हैं कि यार मैं कारोबार शुरू कर दूंगा, मैं बंदे रख दूंगा, बंदे कारोबार चला देंगे. तो भाई अगर वो बंदा इतना ही केपेबल है कि आपका कारोबार चलाए, तो वो अपना कारोबार क्यों ना कर ले? सो दैट इज एक बेसिक मेंटालिटी है ना भाई. तो खैर एनी हाउ, सो व्हाट वाज मिसिंग इन द अर्ली डेज वाज द ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स. Right? Okay. So that is what was given. From which side? From the teams? No, from the entrepreneur, from the founder side. एक शख्स एक कारोबार में होना चाहिए that will put his heart and soul into the business. Only then can that business succeed. If you say कि मैं सुबह 9 बजे आऊँ, शाम को 6 बजे जाऊँ, मुझे एक linear task की sheet दे दी जाए, मैंने वो task पूरा कर लिया, so you can always be part of the process, but you cannot be part of the success. Certainly. ठीक है जी. तो ये that is what was missing. तो अब जाहिर है एक यंग आदमी जब एक कारोबार में आता है, तो दैट इज, मैंने कहा अच्छा भाई अब तो उस वक्त समझ में आ गई थी शुरू में कि यार ये सारा का सारा जो गेम बैठेगा ना, सेल्स पे बैठेगा, रेवेन्यू जनरेशन पे बैठेगा, और रेवेन्यू आएगा तो कंपनी एक्सपैंड और खर्चा कर सकती है, अदरवाइज नहीं. वरना आपने जो भी इन्वेस्टमेंट, चाहे जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी क्यों ना ले ली हो, जितनी अच्छी आपके पास सारी चीज़ें क्यों ना हो, अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं है तो बिजनेस कैन ओनली थ्राइव फॉर सो लॉन्ग. जब तक आपका सीड बिजनेस साइकिल दैट वी हैव, आपके पास एक सीड मनी होगा, वो बर्न आउट हो जाएगा. उसके बाद अगर जब तक वो दोबारा आप पैसा नहीं डालते तो वो चलता रहेगा. और ऐसा ही रहा था फॉर द फर्स्ट आई थिंक 4 to 5 years we had put into the business financially, and after that it started to flourish. So it is not कि आप शुरू में कोई कारोबार शुरू करो और immediately वो profit, then you have to be very lucky, or the business idea or the business model itself has to be really viable. So just for the business students out there, after 4 to 5 years, you actually broke even. Yes, that is true. That is correct. That is correct. And from having severe losses to minor losses to breaking even, it is a very interesting journey. And the good thing about entrepreneurship is that with the over a period of time it gets easier as the business grows. तो लोग जब अपने कैरियर में बहुत आगे बढ़ते हैं ना, तो उनका टास्क लेवल और चीज़ें डिफिकल्ट होती है. एंटरप्रेन्योरशिप, एक एंटरप्रेन्योर, और अगेन वी विल कम लेटर इनटू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ between being an entrepreneur and being self-employed. It's a very interesting one. Yes. ठीक है ना? Yes. So right now I would consider myself and my father as being self-employed and not entrepreneurs. Okay. ठीक है जी. तो अब being self-employed, let's change the nomenclature over here a little bit. Now being self-employed, the best thing about being self-employed is that in the beginning it is the most difficult undertaking you will ever take in your entire life. ठीक है जी.
लेकिन विद एवरी पासिंग डे थिंग्स गेट, अगर आपकी नीयत साफ है और आप सही डायरेक्शन में हैं, ऑफ कोर्स दैट इज अ गिवन, लेकिन विद एवरी पासिंग डे थिंग्स बिकम बेटर एंड थिंग्स बिकम ईजियर, ठीक है, एंड इट इज अ मैसिव लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड I would say that you tend to learn things very quickly compared to if you are ever doing a job and an employment with somebody. Because being an entrepreneur or being self-employed, you are the judge, you are the jury and you are the executioner. ठीक है जी. तो आप नॉर्मली नौकरी में क्या होता है यार, बॉस ठीक नहीं मिला, ये ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई, ये हो गया, वो हो गया. एक इंसान जो है ना विक्टिम मेंटालिटी कर लेता है कि यार इट इज नॉट मी, इट्स द अदर पर्सन, राइट. लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, यू हैव नोबडी एल्स टू ब्लेम बट यू. You have to create the framework yourself. Exactly, you have to do everything yourself. Just create the body, yes, that you live in. Exactly. तो ये पूरी जो है itself एक entrepreneur की जो है वो जर्नी है, जिसमें अच्छा ये कुछ चीज़ें जो जिस नोशन से मैं गुजर रहा था ना जब मैं स्विट्जरलैंड में था, अगेन वर्ल्ड क्लास लेवल एजुकेशन, किसी ना किसी बिट्स एंड पीसेस में उस 6 महीने के प्रोजेक्ट में, और एक आपको मेंटोर दिया जाता है. माय मेंटोर, अगेन आई नेम हिम मिस्टर पॉल हॉटसन, अ ब्रिटिश नेशनल, वंडरफुल गाय. उन्होंने मुझे बुनियादी तौर पर तो एक्सेल सिखाया था, बट ही टॉट मी अ लॉट ऑफ लाइफ लेसन्स, क्योंकि वो उस ज़माने में मूडल और जो आजकल आईटी की जो बातें हम करते हैं, वो उस ज़माने में वो सब करके 10 साल बाद रिटायर हो चुके थे. तो वो जो ज़िंदगी के असबाक के जो सबक है ना, वो हमको बच्चों को बताया करते थे, वो अपनी जर्नी शेयर किया करते थे. तो उनकी उस जर्नी से भी हमने भी बहुत सीखा कि यार हमें समझ में आ गया था शुरू के पहले 2 महीने में कोर्स लेने के कि यार दिस इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, ठीक है ना, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, बट द रिवॉर्ड एट द एंड ऑफ इट इज़ फिनोमिनल, ठीक है जी. और वहाँ पे फिर ज़िंदगी बहुत आसान होती है. So that was one thing that we learned. Now coming back to my experience, we broke even after 4 years or something. Now I went into sales. अब मैं जब पहली दफ़ा एक कंसल्टेंट के पास बैठा अपने सेल्समैन को लेके, I was unable to explain my own product at that time. ठीक है जी. तो मेरे सेल्समैन ने कुछ ना कुछ समझाया. Now he was a very renowned consultant and उसने बड़ी एक सटल तरीके से मुझे, मेरे सेल्समैन को बोला यार अगली दफ़ा आप आ जाना, इनको लेके नहीं आना. तो मुझे पर्सनली बड़ा एक ईगो हर्ट होता है आदमी का कि यार मुझे क्यों ना लेके आओ भाई, मैं तो कहने का तो I'm the person, I am the man, I am supposed to be the man. yes, ठीक है जी. तो मुझे बड़ा हुआ. तो मैंने उस वक्त अगेन एट दैट टाइम यूट्यूब और ये टेक्नोलॉजी बड़ी नई आई थी. अच्छा, हम जिस डिसिप्लिन में हमारे पास जब हम कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं इनिशियल डेज में, दोज वर सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल डिसिप्लिन्स. अब मुझे समझ ना आया मैं क्या करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जो बेच रहा हूँ वो तो सारे माई फादर हिमसेल्फ इज़ अ केमिस्ट, हिमसेल्फ इज़ अ फार्मासिस्ट एंड अ केमिस्ट बाय पैशन, राइट. सो ही नोज हिज स्टफ वेरी वेल. बट you had no science background. कॉमर्स का बच्चा था, होटल. यू टेल मी हाउ टू यू आस्क मी हाउ टू फ्लिप अ बर्गर, मे बी आई कैन शो यू दैट, बट यू आस्क मी हाउ टू सेल केमिकल्स बैक 10 years back, आई हैड नो क्लू. मरता क्या ना करता, कमरे में गया, रात को यूट्यूब खोलता था. एक उस ज़माने में अल्लाह भला करे IIT वालों का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वालों का, उनका एक चैनल था जहाँ पे एक बड़ा ड्राई सा टीचर बैठा होता था और पुरानी पावर पॉइंट के ऊपर मेरे ख्याल से VHS टेप्स थी वो, जिसको उन्होंने बाद में यूट्यूब पे अपलोड किया होगा. okay. इतना ड्राई साइंस का सब्जेक्ट, मैंने कहा यार अब तो किसी जैसे तैसे करके समझना है. अब वो उसके कुछ 60 घंटे के लेक्चर तो उसे रिकॉर्ड करके डाल दिया था यूट्यूब पे. मैंने कुछ नहीं किया, मैं रात को बैठता था, उसके सुनता था, पॉज करता था, लिखता था, करता था. करते करते समझ में आना शुरू हो गया कि यार ये बिल्डिंग के अंदर इसको कॉलम कहते हैं, इसको बीम कहते हैं, ये इस तरह के लोड होते हैं, सरिया इस तरह से बनता है, कंक्रीट ऐसी होती है. करते 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 अपनी सेल्फ लर्निंग शुरू कर दी. एंड देन विद दैट सेल्फ लर्निंग ऑफ कोर्स हैड द गाइडेंस ऑफ माय फादर, जिन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट समझाया. बिल्कुल सर. तो अब समझ में आने लग गई कि भाई बेचना क्या है. तो जब ये समझ में आएगा बेचना क्या है, फिर ही हम इस चीज़ का तयन कर सकते हैं कि बेचेंगे कैसे. बिल्कुल ठीक है जी. तो हमने जब एक चीज़ समझ में आ गई, देन ऑफ कोर्स we kept on going on to these sites and these architects and engineers and all of those things, इनको हम पिच करते गए. फिर हमने एक रिटेल में टाइल एडिसिव का, दैट इज टाइल एडिसिव शुरू किया. नाउ दैट वाज अगेन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड. वहाँ पे हमें दुकान जाके टाइल एडिसिव बेचना पड़ता था. टाइल एडिसिव वो होता है जिससे टाइलों को फर्श के साथ जोड़ा जाता है. एट दैट टाइम देयर वाज वन कंपनी दैट जो कि मार्केट का अच्छा खासा शेयर लेके बैठी हुई थी, एंड इट फेल्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पेनिट्रेट इट्स मार्केट. अब यहाँ पे मसला ये था कि प्लांट तो हम लगा चुके थे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सारी हो गई थी, अब किसी भी तरीके से इसको चलाना तो ज़रूरी था, अब वाइंड अप करके नहीं जा सकते. सो इट्स अ डू और डाई सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन. ठीक है जी.
तो हम देन अगेन वी वेंट इनटू द मार्केट. अब मैंने शुरू में, ज़ाहिर आदमी सबसे पहले यहाँ से एक सेल्स का बंदा पकड़ लो, दूसरा सेल्स का बंदा पकड़ लो, ये कर लो, ये मार्केट में जाएगा, ये बेच के आएगा, ये वो. अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस. क्यों? क्योंकि एक चीज़ जो मेरे 13-14 साल के कारोबारी एक्सपीरियंस में मैं पर्सनली कहता हूँ, यू विल बी वेरी ब्लेस्ड टू हैव पीपल हु विल एक्चुअली वर्क फॉर यू. ठीक है ना? लोग अपने लिए काम करते हैं. ठीक है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है. एवरी मैन इज देयर फॉर हिमसेल्फ. आज ठीक है ना? तो लोग अपने लिए काम करते हैं. उसने अपने घंटे पूरे करने थे, उसने अपनी विजिट रिपोर्ट करनी थी. तो अगेन वो सेल्स में उसका पैशन नहीं था. हाँ, एक दफ़ा आपके पास कस्टमर बेस बन जाता है, आपके क्लाइंट्स बन जाते हैं, आपकी मार्केट में एक ब्रांड बन जाता है, देन यू कैन हैव पीपल ऑन बोर्ड जो कि आपका बना बनाए संभाल सके. लेकिन दे विल बी वेरी फ्यू पीपल इन योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जर्नी जो कि आपको जो है आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े होंगे. आई हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव one colleague like this of mine, and if he's listening, he exactly knows who he is. After years down, you will only spot one or two people Exactly. who will be standing as your right hand. Right hand and left hand, yes. And as your pillars. As your pillars, yes. As your very very core core members. Yes. I mean, even the biggest billionaires in the world, I think I can relate myself to them, क्योंकि उनके पास भी वो 4-5 की लोग होते हैं जिसकी बेस पे उनका पूरा एम्पायर खड़ा होता है. And they have gone through the massive chaos that the organization has seen from the time of inception. Without chaos, they can only. And with no hope. नहीं, मैं एक बात बताऊँ. Without chaos, सिर्फ एक हल्की सी linear growth होगी. With chaos, exponential growth होगी. I have always learned this, that when you throw yourself in chaos, you flap your own hands and feet. Exactly. And that is exactly when you learn and come out. Yeah. I have seen it's a beautiful and a very, very exciting journey, and I would further delve into it. But Sir Hussain, we have seen a very clear distinction between what you were doing, being a commerce student, transitioned into somebody who had this penchant for hospitality and event management and food and, food and beverage, etc. And then came all the way to a very, very contrasting field of engineering and chemicals and construction and, all of that, and sales. Something that you were not cut out for primarily. You being yourself were a sales entity because you were in the field of hospitality. My question to you is, because a lot of students could relate to it and they must be going through it, does this contrast of getting into a field of study and completely a diverse field of work, does it help in some way, or do you feel that you compromised your passion for hospitality and hotel management, and just because it was a father's business, you had to take it over and you had to learn and had to get into it? Is there an inside regret, remorse of some sort that because now today, in a world of today, we will be needing 10 years, a decade before, we did not have much people who were considered to be, the it people in the hospitality business, because apparently there weren't any. Mm-hmm. But now we have universities and colleges like Pitham and Kotham and, hotel management schools which are doing an amazing job. And then we have good trainers. Somebody like you, because there's a dearth, is still a dearth in that industry. Of course it is. Do you think that you are still required on that side, or you would still want to do something? Do you think that, your passion was compromised to a certain extent? Do you think this move of yours of coming into a completely contrasting field should be something that should be done by other students as well, and they shouldn't be scared of it? अगर बहुत ही गहरा सवाल कर लिया है, इसका जवाब मैं ये दूंगा कि यार उनके my father has played a very pivotal role in my life. Right, from getting me into hospitality, फिर उनके कारोबार के कुछ, again he had this sense, right, and उनको, और हमारे यहाँ थोड़ा कल्चर में होता है घर का आदमी चाहिए कारोबार के अंदर. So उस वक्त उनका कारोबार उस पैमाने पे फैल गया था कि अब उनको महसूस हो रहा था कि यार अब हमें जरूरत है घर के आदमी. Are you the only? No, I have a younger brother as well. I have a younger brother as well, and he has done economics, but he's selling textile chemicals. So that's a completely different field as well. But one thing which I've seen my father do over the years is that he has thrived exponentially. Because if you ask,
इस पे तो बाकायदा रेसिकैम का बाय द वे हमारा एक चैनल है जिस पे मेरे फादर की पूरी लाइफ स्टोरी 1-1.5 घंटे की उन्होंने पूरी एक्सप्लेन की है, हाउ ही वेंट फ्रॉम स्टडीइंग इनटू फ्रॉम अ वेरी बेसिक और बिलो बेसिक बैकग्राउंड, हाउ ही वेंट इनटू हाउ जब वो 6ठी या 7वीं जमात में थे उनको ABC लिखना नहीं आती थी, सो लर्निंग थिंग्स इन उर्दू फ्रॉम उर्दू मीडियम ट्रांसलेशनिंग इनटू इंग्लिश मीडियम, देन सम हाउ फार्मेसी करने के बाद फ्रॉम टैबलेट पंचिंग टू फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, देन कंप्लीटली ट्रांजिशनिंग फ्रॉम फार्मेसी इनटू पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है ना। तो जो शुरू में जैसे मैंने कहा था ना, हम चलते गए कारवां बनता गया, ठीक है ना। तो कभी कभार मुझे लगता है ऐसा है कि ओवर थिंक करना भी जो है ना बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होता है, ठीक है ना। समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, बट समटाइम्स यू नीड टू गो विद द फ्लो एज वेल, राइट। सो एज फार एज आई एम कंसर्न, आई वेंट विद द फ्लो इन माई लाइफ, ठीक है ना, ज्यादा सोचा समझा नहीं यार। ये अच्छा, हॉस्पिटैलिटी भी ऐसा नहीं है मेरा पैशन था, मुझे बताया गया कि यार तू एक काम कर यार हॉस्पिटैलिटी पे चल ले, क्योंकि मेरे वालिद साहब को पता था कि यार ये साइंस वाइंस में जो है ना इसका कुछ होना नहीं है, ठीक है जी। ज्यादा अकाउंट्स, कॉमर्स और नंबर्स में भी मेरा कुछ नहीं होना, ठीक है ना। तो एक या तो मैं बहुत ज्यादा कोई आर्टिस्ट्री वाले काम करता, आर्ट स्टूडेंट बन जाता। इट वाज अच्छा, ये जो हॉस्पिटैलिटी जो मैंने पढ़ी है ना, इट इज कॉल्ड क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग, ठीक है ना। क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब ये होता है कि ये आपको किताबों में नहीं पढ़ाते, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। मुझे भी ऐसे ही सिखाया गया था। पहले दिन जब मैं गया था तो मुझे जो है इन्होंने कैश के काउंटर पे खड़ा कर दिया था, स्टूडेंट्स आते थे, पैसे देते, बैठ कैश काउंटर चलाओ। दूसरे दिन मुझे बोल दिया था कि बेटा प्लेटें उठाओ। तीसरे चौथे दिन मुझे बोला बाथरूम भी साफ करना है और प्लेटें भी धोनी है। तो यहाँ से पहले दिन की ट्रेनिंग शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि आपको क्लासरूम में अच्छे AC इन्वायरमेंट में बिठा के ये वो, हैंड्स ऑन लर्निंग होती है ये सारी, ठीक है ना। पहले साल तो सर्विस सिखाई, दूसरे साल मुझे किचन सिखाया, फिर तीसरे साल मैनेजमेंट पे हम लोग आए थे, ठीक है। तो जो डिप्लोमा था दैट वाज प्योरली, और अच्छा डिप्लोमा भी पूरा करने के लिए 3 इंटर्नशिप जरूरी थी। तो जो पहली इंटर्नशिप जो मैंने की दैट वाज इन एट होटल कैप्रिस वैंगन। आई हैड द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, क्योंकि एक बहुत ही प्रिविलेज इन्वायरमेंट से उठ के अब आपने 5 टेबल्स को सर्व करना है, यू हैव टू टेक केयर। अच्छा, इट वाज अ फाइन डाइनिंग एस्टैब्लिशमेंट, तो यू सो ओवर देयर कस्टमर कभी बुलाता नहीं होता, उसकी आंख का इशारा देख के उसके पास जाना पड़ता है। तो ये उस लेवल की, अच्छा वहाँ पे चूंकि लेबर महंगी होती है तो इंटर्नी सस्ते होते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि आपको आते के साथ ही आग में झोल देते हैं, क्योंकि उनके पास भी थोड़े बजट के मसले होते हैं। क्योंकि जो प्रोफेशनल सर्विसमैन होता है उसकी ऑफ कोर्स स्विट्जरलैंड में मिनिमम वेज और जो मार्केट वेज है वो बहुत ज़्यादा है, ट्रेनिज को तो मिनिमम वेज दी जाती है। अच्छा, वहाँ पे ये है कि इस तरह के ट्रेनिज से फिर पूरा रगड़ा लगवा के काम करवाया जाता है। You're the horse then. Yes. I was the horse who had never ran a race in my entire life. So from there, going to 100 miles an hour, आपको बस आग में झोंक दिया जाता है। और अच्छा, उनको भी पता होता है कि a lot of them will make it or break it. तो जब जिस लॉट में उस रेस्टोरेंट ने हमें हायर किया था ना, तो मुझे तो आते के साथ ही 2-3 वैसे ही छट गए थे। तो उनको पता होता है ये चीज़ें कि यार इतने ट्रेनिंग लेके आऊँगा, ये कुछ भाग जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, जो रह जाएंगे वो काम के होंगे। बिल्कुल, ठीक है जी। तो मेरे साथ भी ऐसे ही वो रेस्टोरेंट में शुरू में आए, शुरू के तो 2-2, 3-3 हफ्तों में निकल गए। बाकी के जो 4 महीने या 6 महीने की जो ट्रेनिंग थी होटल कैप्रिस में, वो हमने की। सेकेंड, आई वॉज इन रमाडा ओवर देयर अगेन। एक और भी मुझे कल्चर शॉक लगा कि जब मैं यूरोपियन इन्वायरमेंट में काम करके जब मैं मिडिल ईस्ट में या UAE में गया, वहाँ पे सारे इंडियन पाकिस्तानी थे। वो वर्क कल्चर और वर्क एथिक बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, ठीक है ना। और उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि अच्छा, एट दैट टाइम आई गॉट द फीलिंग यार यूरोप में जो है ना थोड़ा काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन उनका वर्क एथिक और उनका कल्चर मुझे ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि इट्स मोर ट्रांसपेरेंट। हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में शायद हम आपसी सियासत और लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा माने रखते हैं। उस कल्चर में ऐसा नहीं है। उस कल्चर में यू नीड टू गेट योर जॉब डन, ठीक है ना, एंड यू आर ओनली एज गुड एज योर जॉब। तो आपकी जो आपके कॉलीग्स के साथ जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है ना, दैट इज बेस्ड ऑन योर वर्क एंड नॉट मोर ऑन योर पर्सनालिटी एंड who are you appeasing and stuff. एग्जैक्टली। तो उस तरह का कल्चर था ही नहीं कभी, ठीक है। तो दैट मुझे समझ में आ गया कि यार मैं इस कल्चर में ज़्यादा बेहतर फिट होता हूँ कि यार काम कर ले और काम से ही अपनी इज्जत बना ले, ठीक है ना। आज भी जब मैं इतने सालों बाद भी जैसे कि मैं काम करता हूँ, तो मेरे शायद इतने दोस्त नहीं है मार्केट में, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो मेरी रिस्पेक्ट है वो मेरे काम की वजह से। तो so that is the biggest cause. That is the thing. As far as regret is concerned, Switzerland is one of the most beautiful countries in the world. I have made some phenomenal friends over there over the years. I have lived, I have loved, I have laughed, I have cried, I have had all the sorts of highs and lows of emotions. So मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कि शायद मैं खुद फिजिकली यहाँ पे आ गया, लेकिन अपना दिल शायद स्विट्जरलैंड में छोड़ के आया हूँ। अब उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक एजुकेशन था। और आई थिंक दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर ऑल दोज
kids who go through college and have that sort of an experience over there, right? उधर तो बिल्कुल देखिए पाकिस्तान का कल्चर और वहाँ का कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको जब आपको एक फौरी तौर पे एक्सपोजर मिलता है, आप एक नई दुनिया में जाते हो, नए दोस्त बनाते हो। अच्छा यहाँ पे तो आपको एक बड़ा क्योंकि अगेन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलता है। वहाँ पे तो सर यू आर ऑन योर ओन। Yes, yeah, certainly. And you stepped into Switzerland as an amateur. एज एन एमेच्योर वहाँ पे जो बच्चे जो उनके कल्चर से कम अकस्टम्ड है और आपस में तो they felt more at home compared to from where I came from. So that learning curve, that adjustment curve, and then once I adjusted, I started enjoying myself. So of course एक थोड़ा सा तो रिग्रेट होता है। अच्छा मज़े की बात ये थी कि आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पास एक जॉब ऑफर भी थी, लेकिन आई केम टू पाकिस्तान। तो कभी कभी ऐसा जहन में ज़रूर होता है कि यार वो जॉब ले ली होती, लेकिन अगर आज मैं आफ्टर 13-14 साल बाद देखता हूँ तो शायद मैं कहीं मिड लेवल मैनेजमेंट में या कहीं पे होता तो शायद पैसे ज़्यादा कमा रहा होता, क्योंकि वहाँ पे याद रखिएगा पैसे स्विस फ्रैंक में मिलते हैं। एक फ्रैंक शायद अभी 300 रुपये का है, ठीक है जी। तो वहाँ पे 5,000-4,000 फ्रैंक की नौकरी बड़े आराम से मिलती है। यहाँ पे अभी इतना सब कुछ करने के बाद भी शायद इतना ना कमा पाते, लेकिन जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में एक ऊपर जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला पार्ट है ना, वहाँ पे यहाँ पे बैठ के जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं आप। ऑफ कोर्स शायद आपके लिए ज़ाती तौर पे पैसा शायद इतना माने ना रखे, लेकिन वो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, बीइंग एट द टॉप ऑफ योर गेम एंड टॉप ऑफ द पिरामिड, वो फीलिंग तो फिर नेक्स्ट लेवल है। When all the needs are satisfied and now you're moving towards something else, that is bigger than the needs and wants. Exactly. That is very interesting, and I think it won't be wrong to say that whatever you learned in terms of your personality craftship, that is exactly what you have infused in Resichem as well. Of course. A lot of students are BBA current students, recent graduates. They are majority of them, and it won't be wrong to say that 80 to 90% of them are envisioning to become an entrepreneur. I will take you back to that distinction that you were talking about. Firstly, what is that clear distinction between being self-employed and being an entrepreneur? And if somebody really wishes to, and because obviously they're coming from affluent backgrounds, they have well-established businesses at home, they would like to take it up. There's a certain level of, I think I've noticed this, that there's a certain level of complacency that I've seen in the individuals. Just because, like you mentioned earlier, there was an already established business, you just had to take it over, but you took it in a very different manner. And, there was a part of you that told you that, okay, fine. Even if I fail, my father is going to kind of like be there to catch me. I was very privileged in that sense, yes. Yes, but then there's a mixed blend of students. Firstly, what are the key traits of being an entrepreneur? What you should be ready for? And secondly, those students who just want to just go with the flow of doing something with their dad's business and being there but being not at the top of their game, what are they missing out on? अब मैं बड़ा लंबा सवाल था, इसको 2-3 हिस्सों में डाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंड एन एंटरप्रेन्योर। तो भाई फ्रॉम डेफिनेशन अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इज समबडी हु हैज टू बी डे इन डे आउट, वो अपने बिजनेस को मैनेज करता है, ठीक है ना, तो बेसिकली अपनी एम्प्लॉयमेंट के अंदर है। एन एंटरप्रेन्योर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज फर्स्ट, ऑफ कोर्स उसकी जर्नी में सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है, क्योंकि उसमें वो सीखेगा। इवेंचुअली उसने सिस्टम ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि बाय डेफिनेशन ही कैन स्टे अवे फ्रॉम हिज और हर बिजनेस फॉर 3 months, 4 months, अ ईयर। बिजनेस चल रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, पैसे जेब में आते रहने चाहिए। दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। वो अपनी ज़िंदगी भी जी रहा है, उसको पैसे भी आ रहे हैं, पीछे से उसने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। नाउ दैट इज़ द अल्टीमेट लेवल, ठीक है ना। बहुत कम लोग वहाँ पहुँच पाते हैं, जिसे मैं प्योरेस्ट एंटरप्रेन्योर्स कहूँगा, ठीक है ना। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, ये सारे लोग ऐसे हैं जो अगर कल से फैसला करते हैं कि हम काम नहीं करते तो अपनी ज़िंदगी बड़े सुकून से जी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे उन्होंने कोई ऐसी चीज़ क्रिएट की है जिसकी बुनियाद पे, जिसकी बेस पे उनको पैसे आ रहे हैं। ऑटोमेट हो गई चीज़ें। सो दैट वुड बी एन एंटरप्रेन्योर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था? The next part of the questions was regarding the students, the traits that देखिए मैं अब इसको उर्दू में अगर सादा ज़बान में कहूँ ना, तो एक एंटरप्रेन्योर को चलता पुर्जा होना चाहिए।
चलता पुर्जा वो होता है जो अडेप्ट करता है अपनी सिचुएशन को देख के। खास तौर पर क्योंकि स्विट्जरलैंड में तो हमें सिखाया गया था कि ये प्लानिंग करनी है, ये करना है, ये करना है। मे बी इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन सेंस दैट वुड हैव मेड सेंस, बट पाकिस्तान के अंदर इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं चलती। सो यहाँ पे एटलीस्ट अगर पाकिस्तान में आपको अच्छे तौर पे सेल्फ एम्प्लॉयड और अपना बिजनेस करना है तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली अडेप्टेबल, एंड यू हैव टू बी अ सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु इज फ्लेक्सिबल एंड कैन गो विद द फ्लो and think on his toes. Think on his or her toes, of course. That is a given. तो ये कुछ बेसिक ट्रेड्स है। मैं ये नहीं कहता कि आपको MBA होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे डेबिट क्रेडिट आने चाहिए, आपको बहुत अच्छा लॉ आना चाहिए, आपको बहुत अच्छी नहीं। आपकी एक इनेट अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड्स जो है आपके इनेट यू आर बॉर्न विद और नेचुरली यू हैव देम, यू कैन डेवलप दीज ओवर टाइम्स एज वेल। जैसे मुझे आज भी याद है, सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसका नाम था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मुझे समझ में आया पाकिस्तान में आके इसका नाम ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स से बिहेवियर नहीं है। बिल्कुल जी। तो हमें तो एंटरप्रेन्योर्स को, हाँ, द रीजन व्हाई अगेन मैं थोड़ा सा डिविएट कर रहा हूँ, द रीजन व्हाई आई एम हियर ऑन दिस पॉडकास्ट इज एज वेल कि मेरी हुज़ैफा सर से बात हुई थी, तो मैंने उसको कहा था यार बच्चों को जो है ना मुझे थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ानी है, ठीक है, एक कोर्स लेके जाना चाह रहा हूँ जहाँ पे मैं अपना जो स्विट्जरलैंड का एक बहुत यूरोपियन एक्सपीरियंस और साथ में उसमें थोड़ा सा पाकिस्तानी टच देना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। सो आई बिलीव दैट वुड बी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स व्हिच एटलीस्ट आई कैन गिव टू दोज चिल्ड्रन फ्रॉम माई जर्नी एंड माई एक्सपीरियंसेस। क्योंकि इन रेसिकेम मैंने जो है एक छोटे मिस्त्री, एक छोटे ठेकेदार से लेके 3 स्टार जनरल तक से इंटरेक्शन की है। मैंने बड़े बड़े दूसरे बिजनेस ओनर्स से भी इंटरेक्शन किए जो कि अपना घर बना रहे हैं, वो जो कि अपनी बड़े बड़े टेक्सटाइल मिल एंड ओनर्स के साथ मैंने जो है इंटरेक्ट किया हुआ है। छोटे से छोटे घर के चौकीदार से लेके मैंने बड़े से बड़े लोगों तक किसी ना किसी फॉर्म में इंटरेक्ट किया टू अचीव माई बिजनेस गोल, ठीक है ना। तो यहाँ की डायनामिक्स बड़ी मुख्तलिफ है, वहाँ की डायनामिक्स बड़ी मुख्तलिफ है। सो whosoever needs to get the best of both worlds। और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनके अब मेरे पास बने बनाए बहुत सारी चीज़ों के जवाब है। मुझे पता है कि अगर ये होता है तो ये करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ऐसा, अब आप ऑटोमेटिकली ऑटो ट्यून ऐसा, अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसका ये हल है, इसको ऐसे नहीं ऐसे। शुरू में प्रॉब्लम्स बहुत बड़े लगते थे, लेकिन विद दैट जर्नी, सो व्हाट वी कैन ऑलवेज हेल्प दी स्टूडेंट्स इज दैट उनको हम अपनी जर्नी से थोड़ा गाइड कर सकते हैं। राइट, तो ये है। अच्छा, coming back to that question of yours, when it comes to this distinction, when it comes to students becoming entrepreneur, and there's a certain level of complacency that comes in from the fact that there's a well-established business that I already have. यार it will totally, I just have to adopt समझ to गया it. मैं समझ गया यार। अब ये तो बच्चे के अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए। Do you think you're different? Why? Because you got this international exposure? I was Because I'm just different. relating. नहीं, I was different and I was privileged in that sense कि पहले दिन जाते के साथ ही जो है ना मुझसे बाथरूम साफ करवा लिए गए, मुझसे प्लेटें उठवा ली गई, मुझसे बर्तन धुलवा लिए गए। जो चीज़ मैं उस वक्त समझता था हकारत की चीज़ है, मुझे वहाँ पे बहुत क्लियरली समझा दिया गया भाई नो जॉब इज टू बिग एंड नो जॉब इज टू स्मॉल। That's wonderful. ठीक है जी, एवरीबडी इन द सोसाइटी इज इक्वल एंड एवरीबडी नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। Certainly. ठीक है ना। तो जो कंप्लेसेंसी आती है ना, दैट कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ बीइंग प्रिविलेज्ड। ठीक है जी। और उसमें फिर समझ में आ गया कि ज़िंदगी में तो अभी बहुत अप्स एंड डाउन्स आने हैं ना, तो उन अप्स एंड डाउन्स के लिए भी एक तरीके से प्रिपेयर कर दिया गया कि भाई देयर इज़ नो सच थिंग कि भाई दैट गाय हु इज पिकिंग अप गार्बेज ऑन द रोड इज इक्वली एज रिस्पेक्टेड एज a billionaire or whatever. That takes me to the example that when our students were put on internships, even they were these students were coming from these very solid backgrounds. They had issues doing clerical work, and even as first year students, and they in a few occasions it became one of the reasons of them being signed off from work as well. Exactly. Because even till today I do all sort of clerical work that my job requires. Because Same I here. think that has developed here. me to the person and the personality that I am. And like you mentioned, it brings you down. It breaks the rut. हम्बल करता है आपको, Yes, it makes you it humble। और मेरे humbles अब्बा का बड़ा एक मशहूर जुमला था, बेटा गर्दन में कभी सरिया नहीं रखना, बिल्कुल स्टार्ची नहीं होना चाहिए। स्टार्ची नहीं होना चाहिए। तो वो आपको यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू। भाई क्लरिकल वर्क में क्या है भाई, चीज़ की इब्तिदाई क्लरिकल वर्क होती है आपको। अच्छा, व्हेन आई वाज देयर इन द किचन, पहले दिन मुझे आज भी याद है, नीचे से लेकर ऊपर तक प्याज के पूरे उसने जो है ना 6-8 वो रख दिए थे। और वो शेफ था, आई डोंट नो ही हैड समथिंग अगेंस्ट इंडियंस और व्हाटएवर, बट आई थैंक हिम अंटिल दिस डे। ठीक है ना। उसने बोला बेटा ये है, now chop them up with your hands and then we will talk about making fancy dishes. First you need to learn how to cut your onions. Certainly. So I think empathy, and I think the fact of
humbling yourself Yes. and going to, again, the roots of your purpose and your job is very Exactly. important. Exactly. Speaking of the most grounding challenges, apart from this one, and now we are speaking of Resicam, your experience of Resicam, do you remember, because obviously I want to take it and integrate it with all those students who are trying to start up their own products, their own services, their own babies, as entrepreneurs, as dreaming to be, very established and successful entrepreneurs. Help them understand through one of the very, very hardcore challenges that you went through in Resicam. How did you combat it? What came out of it? How did it change you and then the business? And also give a little bit of your, piece of wisdom to these students in understanding that if you are a freshman in the world of entrepreneurship, what should be your 2 to 3 core agendas at least for the next, let's say, 2 years? अच्छा, सबसे पहले तो अगर किसी ने कोई कारोबार स्टार्ट करना है ना, तो if you are very lucky, you will have a very solid business idea. You will be satisfying a need where there is a vacuum in the market, जो कि हमें स्विट्जरलैंड में in a very Swiss way सिखाया गया था. लेकिन इस चीज़ को क्रैक करना इतना आसान नहीं होता. तो नॉर्मली जो एंटरप्रेन्योर्स या जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, वो बहुत ही सैचुरेटेड किस्म की मार्केट में जाते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड कॉन्सेप्ट होता है. वहाँ पे 10 लोग होते हैं, आप 11वें खिलाड़ी होते हो. ठीक है ना? तो डिपेंड्स ऑन हाउ, बिकॉज एज आई सेड, हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी एक जैसी नहीं होती. बट अगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज आई सेड, द एवरी पासिंग डे इज ईजियर देन द प्रीवियस वन. लेकिन जो सबसे मुश्किल दिन होता है वो पहला, सबसे पहली बिस्मिल्लाह होती है कि भाई आपने शुरू करना है. बिकॉज द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, राइट? एब्सोल्युटली. लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक अच्छा आइडिया और कॉन्सेप्ट. और मैं आइडियल बता रहा हूँ, अगर आपके पास अच्छा आइडिया और अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको सही मार्केट पता है, आपको पता है किन लोगों के पास जाके बेचना है, बैक ऑफ हाउस में आपकी अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसका प्रॉपर सेटअप है, कोई सर्विसेज दे रहे हो उसका प्रॉपर सेटअप है, देन इट बिकम्स ईजियर, गिवन दैट द कॉन्सेप्ट इज गुड. इफ द कॉन्सेप्ट इज डिफिकल्ट, like saturated one, let's suppose, right, where there are already a lot of different players out there in the market, you will, as an entrepreneur, have to be a little creative to sort of find out that differentiating factor, right? USP, unique point. Again, USP, फिर एक emotional selling point होता है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं. Competitive edge. Yes. तो मे बी अगर आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं, आपका इमोशनल सेलिंग पॉइंट है कि मे बी व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर कैन समहाउ रिलेट टू यू एंड गिव यू दैट सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस, राइट? तो अब इसमें अलग अलग अप्रोचेस हैं, उस पर हम चाहे 2 घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन द क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव, देन इट विल ऑल एंड अप बीइंग हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, and you'll have to be efficient, and you'll have to manage your resources properly, because again, if you burn out with money, and now again, since I come from a Dawoodi Bohra and sort of that religious background, मैं सबको एक चीज़ कहता हूँ कि सूद पे काम नहीं करना, इंटरेस्ट पे काम नहीं करना, and always within your means try to grow your business. ठीक है ना? और अगर आपकी नीयत साफ है और आप सही तरीके से काम करते हैं, सबका टाइम आता है. ठीक है नहीं? तो sometimes अगेन माई फादर, देयर इज अ बिट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट. मेरे अब्बा हमेशा मुझे कहते बेटा सब्र रखो. मैं कहता अब सब्र नहीं होता, बस काम करके इसको आगे निकालना है. ठीक है ना? लेकिन इन हाइंडसाइट, यस, समटाइम्स इट्स गुड टू बी पेशेंट. अब मिसाल के तौर पे मैं एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेके बैठा हूँ, गवर्नमेंट ही चेंज हो गई है, नाउ आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट? आई कैन नॉट स्पीड अप दैट प्रोजेक्ट. सर्टेनली. तो वहाँ पे फिर थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा. अनसिस्टमैटिक रिस्क्स वी टॉक अबाउट बिल्कुल इन बिजनेस. बिल्कुल. अब ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी. आपको समझना पड़ेगा कि ठीक है, लेकिन अच्छा एक और चीज़ है, व्हेन आई टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, के अ गुड एंटरप्रेन्योर इज नथिंग विदाउट हिज और हर टीम. सो वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल पीपल इज कि यार आपको अपनी जो टीम है उसको हैप्पी रखना है, मैनेज करना है, बिकॉज वन मैन शो कैन ओनली गो ऑन फॉर सो लॉन्ग. ठीक है ना? उसके बाद आपको एक टीम चाहिए ही चाहिए. And if that team is happy with you, can emotionally as well as financially relate with you, and your interests are aligned, फिर business को rocket लग जाता है. ठीक है ना? फिर आपका business एक next level पे चला जाता है. बिल्कुल सही. So speaking of, the technological advancements these days, and also speaking of the fact how you boosted the sales in your particular company, we are going through very acute economic times these days.
and then there is an abundant, transitioning of technology. Of course. There's AI, there's automation, there's chat GPT, you name it and we have it. There's machine learning. So, and then your father was smart enough to invest a lot very early in technology, in research and development exactly. in technology. How do you think the business's nature these days, and especially for entrepreneurs, has evolved, will eventually evolve, considering the economic challenges of today? How to churn that cycle and keep on churning that cycle smartly? I think this is the best time for entrepreneurs ever in the history of the world. Fantastic. इसकी वजह बता दूं. Now things are done a lot faster. You can achieve a lot more with a lot less resources. As long as you have a smartphone and as long as you have an internet connection, you have all the knowledge in the world. It's a world of entrepreneurs. Exactly. Yes. So you can achieve a lot more in a lot less. ठीक है ना? पहले तो पुराने वक्तों में तो फिजिकली उठ के लाइब्रेरी जाके किताब पढ़नी पड़ती थी ना. अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ठक 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 सामने आ जाती है सारी चीज़ें. आज मुझसे कोई सिविल इंजीनियरिंग का सवाल पूछता है, मैं कुछ नहीं समझ में आता तो मैं गूगल कर लेता हूँ भाई, और मुझे हाथ के हाथ समझ में आ जाता है कि भाई ये क्या रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा. Whether I have that solution or not is a different story altogether, but at least I have all the information. But considering the consumer cycle, considering the purchasing power, do you think that businesses are getting affected? Did yours got affected? And how are you kind of like, just keeping up with that? Because you have to generate a payroll once you're there, right? I think the crux of an entrepreneur. अच्छा, मैं आपको छोटा सा, let's start a little bit from the basic. What is the objective of a business, right? जब आप एक business start करते हो, उसका objective क्या होता है? The objective of a business is to make profit. Yeah, certainly. Certainly. As basic as that. Basic as that. आपका काम है कि आपने कारोबार किया, आपने मुनाफा जनरेट करना है. अब वो मुनाफा कहाँ से आएगा? मैं अपने भाई से भी बात करता हूँ, और कभी whenever I have sit around with friends, यार काम हो नहीं रहा, मैं सबको एक ही बात बोल रहा हूँ, बेटा chase the money, go where the money is at. अक्सर और बेशतर हम अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा, आई डोंट नो द वर्ड फॉर इट, लेकिन हम बहुत ही खैराती माइंडसेट लेके चले जाते हैं. यार, आई नीड टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. भाई, बिफोर मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, मेक योर लाइफ बेटर, देन एंड अप मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, राइट? तो एक बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक मेंटालिटी जो है ना, वो नहीं रहनी चाहिए. जब आप जो भी बिजनेस करें ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे बिजनेस वो करना है जहाँ पे मेरा जो क्लाइंट है उस तक मेरी रसाई है और उस क्लाइंट के पास पैसा है. Unfortunately, a lot of us fall into the cycle of chasing clients who don't have the purchasing power to begin with. ठीक है ना? And purchasing power day by day is diminishing, so you need to get clients who you know for a fact can afford you. And it is not logical to pursue clients or ideas where you know that your potential client cannot afford you in the first place. तो फिर उस चीज़ के ऊपर मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है. Even in these shrinking times, अब मैं एक और भी बात बड़े मज़े की कहता हूँ कि जहाँ पे हम रोज़ सुनते हैं that the rich is getting richer and the poor is getting poorer. Yeah. तो भाई, touch the rich. Simple सी बात है. As an entrepreneur, you need to go to the people who have that kind of money and then tap onto them. Are the businesses doing, well these days? The ones, as I said, the rich is getting richer and the poor is getting poorer. Yeah. So there are some businesses that are still thriving in this day and age. There are certain businesses whose valuations have doubled, tripled and quadrupled, and there are some businesses who were at the lower strata, they vanished. जैसे मैं आपको एक बात कहूँ, हमारे बिजनेस में नाउ अगेन एक जर्नी हो चुकी थी. तो जब कोविड हिट हुआ, कोविड में हमारी इंडस्ट्री के बहुत सारे जो कॉटेज प्लेयर्स थे वो आउट हो गए. तो उनका जो मार्केट शेयर था वो हम जैसे बड़े प्लेयर्स ने ले लिया, राइट? सो व्हाट एंडेड अप हैपनिंग वाज दैट दोज पीपल हु आर not of the lower strata of the business, they vanished, but the big players became bigger. So you need to be smart enough to understand where you tap into it. They always say that, you don't have to kind of like be very aggressive in order to beat the competition. You just need to be persistent And smart at the same time. Smart, and because the more your life cycle will run and the more you will be having your presence in the market, the brittle competition will automatically fizzle. And the thing is, at least in our part of the world, it's your lifespan that matters. At least, खास तौर पर in the Pakistani context, it's not so much कि कितनी बड़ी कंपनी लेके आ गया, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कंपनी इन्वेस्टमेंट और फूफा तो बहुत सारे लोग करते हैं.
हमारे यहाँ पेडिग्री देखी जाती है और टाइम देखा जाता है कि इसने मार्केट में कितना टाइम लगाया है और ये कितने टाइम से काम कर रहा है. That is जैसे as I said, my father I keep on going back to my father because I've actually learned a lot from him. वो जब मुझे सब्र का बोलते हैं ना, तो अब समझ में आती है कि यार थोड़ा टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को, तब जाके लोगों के जहनों में होगा कि यार ये आदमी ठीक है, इसका काम ठीक है. क्योंकि रोज मार्केट में लोग ऐसे आते हैं जो बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं एंड दे फिजल आउट. So how are you going to differentiate yourself? That differentiation will come through persistence. And understanding that in order to bridge this gap of the rich being the richer and the poor being the poorer, you have to do well as an entrepreneur and gain the riches, and then do something in the aspect like you do towards Corporate philanthropy and CSR activities बिल्कुल. that can actually bridge this gap. मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए यूरोप में तो हमारे यहाँ थोड़ा सा इसको रिलीजियस एंगल दिया जाता है ना, लेकिन CSR तो यूरोप में भी होती है. बिल्कुल. ठीक है जी, CSR तो अमेरिका में भी होती है, दूसरे ममालिक में भी होती है. वहाँ पे CSR का एंगल जो है ना कम्प्लीटली मार्केटिंग बेस्ड होता है. अच्छा. क्योंकि हमें अपने कस्टमर को दिखाना है कि हम अच्छे कर रहे हैं ताकि आप हमारी चीज़ें खरीदें. उनको जो है ना अपनी आखिरत से कोई लेना देना नहीं है. हम इतने से हमारे अंदर सेंसिटिविटी ज्यादा है. Sensitivity towards you. So all of Towards these the community, towards the world at clothing large. brands will go to Bangladesh, and those people are probably stitching their own clothes. They will कि थोड़ी किसी की upliftment कर देंगे, ये कर देंगे, एक अच्छी सी marketing documentary बना देंगे, ये वो. So that CSR comes from there. हमारे यहाँ थोड़ा सा एंगल मुख्तलिफ है. हम दुनिया के साथ साथ of course अपनी आखिरत को भी देखते हैं. And that is where again मैं पर्सनली एक बात कहूँ, मुझे कराची बहुत पसंद है. क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया ना, मैं बड़ा यहाँ पे जब स्विट्जरलैंड से नया आया था, मैं देखता था यार इधर सैलानी भी है, ये भी है, ये भी है. एक यहाँ पे क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ सिक्योरिटी वाले को, रिक्शे वाले को, मिस्त्री को, मजदूर को इतनी ऊंची अच्छी नज़र से तो देखा नहीं था, बड़ी हकारत. और अगेन दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु गेट बिलो मिनिमम वेज. लेकिन मैं ये देखता था कि कराची इतना खूबसूरत शहर है बिकॉज ऑफ इट्स फिलैंथ्रोपी, क्योंकि अल्लाह का इतना डर है. बिल्कुल. रात को कोई आदमी शहर में भूखा नहीं सोता. That's true. ठीक है ना. ऑल्दो मैं कहता हूँ कि बहुत सारे प्रोफेशनल मांगने वाले ये वो है, लेकिन द क्रक्स ऑफ इट इज़ कि आज भी क्लिफ्टन पे जहाँ पे मेरा घर है 3 तलवार के पास, जब मैं वो टर्न लेता हूँ सैलानी के बाहर एक लाइन देखता हूँ लोगों की जो बैठ के इज्जत से खाना खा रहे होते हैं. Nothing like it. No, it's not only considered to be the financial backbone of the entire country, but it is the province and the place that generates the maximum charity Exactly. in the entire country and beyond. Of course, and यही चीज़ जो मुझे जो है ना कराची की सबसे अच्छी लगती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले 10 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा हुआ है, कचरे के मसले हैं, सारी चीज़ें, डिस्पाइट दैट द सिटी कीप्स ऑन थ्राइविंग, द पीपल कीप ऑन थ्राइविंग. देयर इज अ रेजिलियंस टू दिस सिटी. कि सड़क मेरी टूटी हुई होती है, जहाँ पे मेरा जो एम्प्लॉय मेरे फैक्ट्री में काम करने आता है उसकी मोटरसाइकिल के टायर पंचर हो जाते हैं, हवा सीधी नहीं है, सांस लेने पे बुखार हो जाते हैं, सर के दर्द हो जाते हैं. डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, people make it to work. And that is the beauty of the city. Despite keep on having a consistently deteriorating infrastructure, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, despite all of this, people keep on living, people keep on thriving, and that is the beautiful part of this. तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि कभी इन्हीं इन्वायरमेंट में अगर हम कभी लोगों को अच्छी सड़क दे दे, बिजली, पानी, एजुकेशन दे दे, So what will happen? ज़रा नम हो, तो ये ज़मीं बड़ी ज़रखेज़ है. बिल्कुल. Absolutely, I agree. I was watching this documentary where they mentioned that it is considered to be one of the most happiest nations in the world. It's As considered Pakistanis? as Pakistanis. Well, maybe. Considering the resilience that you're talking about, considering that resilience, No, the resilience is there, but again, we are also chronic complainers. Yes, we are complainers, but yes, but when it comes to resilience and understanding, and when it comes to, the adaptability towards change, एंड द अडेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स चैलेंज, जैसे हम जुगाड़ कहते हैं ना, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जुगाड़ के लफ्ज़ को बड़ा नेगेटिव सेंस में ले जाता है, लेकिन मैं उसको बड़ा पॉजिटिव सेंस में लेता हूँ, क्योंकि ये जुगाड़ ही है जिसकी वजह से हम आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं. No, my uncle got his iPhone made by only one of the technical workers in Sadr. Something that was, he took it to Switzerland, he took it to Europe, he was coming from UK. He took it there. He was like, Adila, there was no other place. I took it to Sadr in Karachi and they got it fixed and it was brand new. And it got ruptured really bad. So I think the way our craftsmen of course are very, very hands-on. Exactly. The way we have, like you mentioned, that resilience has found a way to making it to work every day.
I think that is what that आपने क्राफ्टमैन की बात की, अनफॉर्चुनेटली आते वक्त के साथ क्योंकि सबको बाबू बनने का शौक है ना, तो हमारे यहाँ वो क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग खत्म हो रही है, लेकिन हमारी हिस्ट्री के अंदर इतनी ज़बरदस्त क्राफ्ट है सिर्फ। अच्छा मज़े की बात है ये, इसमें सिर्फ पैसा नहीं, अगर इन क्राफ्टमैन को सिर्फ रिस्पेक्ट दे दी जाए ना, द जेन्युइन रिस्पेक्ट दैट दे डिजर्व, आई थिंक वी in terms of handicraft, in terms of textiles, in terms of heritage is loaded, yes, certainly. In terms of a lot of these things, we can actually export our culture as well. Certainly. Mr. Hussain, I have two questions. One, that when a lot of our students find it very difficult when it comes to, obviously the BBA students, the business category of students particularly, they find it very difficult to find and tap into their niche. They don't know, miss, should I get into HR? Should I get into marketing? Should I become a financial analyst? Should I get into compliance and communication? Or digital marketing has a hype. Should I get into that? What should be the way that you personally think that they can design or tap into or know that, okay, this is my niche? And secondly, my second question, that since you're coming from the field of hospitality management and hotel management, event management, all of these subsets, a lot of students are inclined towards that also today. Which category or what should be the attributes or the skill sets that they should develop during the due course of their academic life that should prepare them for this particular field? Okay, so सबसे पहले तो बच्चा, there are two parts of your question, right? Yes. सबसे पहले तो जब बच्चा पूछता है कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ लाइफ, ठीक है जी, तो उससे सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछूंगा, बेटा तू क्या चाहता है अपनी ज़िंदगी से, व्हाट इज़ योर इवेंचुअल गोल, ठीक है ना, रादर देन कि यार इस पाथ में ये होगा, इस पाथ में ये होगा, इस पाथ में ये होगा। मैं कहता हूँ भाई तू पहले ये मुझे बता दे कि तू ज़िंदगी से क्या चाहता है, ठीक है ना, बिकॉज entrepreneurs and all of these things, for some people money is everything, for some people family is everything, for some people somebody has somebody has something that makes them tick in life, right? So my question to the other person would be, what makes you tick? And then you should pursue that. What makes you happy? And whatever is your source of happiness is your source of business, nothing like it, success is guaranteed. क्योंकि इवन इफ यू फेल, क्योंकि तुझे वो चीज़ पसंद है ना, तो उसको बार बार करता रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में बहुत सारे स्पोर्ट्स का कोई स्कोप ही नहीं है। मैं आज भी देखता हूँ यार, बैडमिंटन के प्लेयर्स फिनोमिनल प्लेयर्स हैं, कोई स्कोप नहीं है, लेकिन खेलते हैं क्यों? क्योंकि उनको खुद पसंद है। लोग बॉक्सिंग करते, लियारी में फुटबॉल खेलते, क्या है पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं, लेकिन खेलते हैं क्यों? क्योंकि उनको पसंद है, इट मेक्स देम हैप्पी, राइट? सो वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, इफ यू मेक दैट योर बिजनेस, excellent, yeah, then work is not work, it's play. And my next question, can you just repeat that? My next question was that students are, a few of our students are particularly inclined towards the field of hospitality management. What should be the practice, what should be the exercise in crafting, in polishing their skill sets, their competencies, in preparing? I mean, what is industry all about? One thing about hospitality, AI आ जाएगी, सारी चीज़, इवन डेनिंग लॉ कॉलेज है ना, AI आने के बाद जो है ना, वकील भी शायद ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर एवरीथिंग, इफ द लॉ बिकम्स ब्लैक एंड वाइट, आपने क्राइम किया, एविडेंस आया, वहीं के वहीं आपको सेंटेंसिंग हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? Yes. So because of this AI and a lot of these things, a lot of these professions with the passage of time will become obsolete. बिल्कुल, ठीक है जी। मैं उस दिन बैक टू द फ्यूचर देख रहा था, बैक टू द फ्यूचर 2 में when Martin McFly actually travels into the future, a crime happens, ठग करके एक होती है, so Dr. Emmett Brown tells him that the justice system works a lot swiftly in the future since they abolished all lawyers. ठीक है जी। तो ये जो है ना, with we are also a business school today. Yes, and you're also a law school as well, at the same time, right? Yes. So of course in the Pakistani context we are way behind, but still, right? तो बहुत सारी ऐसी, लेकिन जहाँ पे बात करता हूँ हॉस्पिटैलिटी की, फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट की, भाई जब तक इंसान है ना, उस तक खाना ज़रूर है। बिल्कुल, ठीक है जी। तो इस वाली बस आपने अपने खाने पीने के अंदर और अपनी विद इन द फील्ड जैसे जैसे आप जिद्दत लेके आते जाएंगे, सारी चीज़ें करते जाएंगे, you will be at the top of your game, right? So this is one of those fields, the hospitality, because people will have physical, because we are again social animals, right? There is only so much socializing you can do over here. You have to physically meet somebody,
You have to physically interact with somebody. You cannot be computers. I don't think at this point in time it's possible. हाँ, आप सेकेंड वर्ल्ड में ऑल्टरनेटिव रियलिटी, मेटावर्स, ये सब में चले जाओगे, लेकिन दैट फिजिकल टच एंड द फिजिकल इंटरेक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एटलीस्ट टू अ मिनिमलिस्ट लेवल रहनी पड़ेगी. So there will be people who will gather together, like-minded people for parties. They will be socializing, they will be eating, they will be drinking. So इस इंडस्ट्री का not only in Pakistan, दुनिया में जहाँ जहाँ इंसान बसता है उसका स्कोप ही स्कोप है. Okay. The hospitality industry, the hotel, and then again इंसान के अंदर एक wanderlust की जो है ना एक फितरी होती है. ठीक है ना, मैं चाहे जितना बड़ा अपने घर में और अपने कंफर्ट जोन में कितना भी, लेकिन साल में 1 या 2 दफा ऐसा है कि चल यार नारायण चलते हैं, का कुछ नहीं तो नारायण का नहीं चलते हैं यार, थोड़ा बाहर निकलते हैं, थोड़ी हवाओं की जरा पहाड़ों पे ताज़ा हवा लेते हैं. कराची में रहते रहते भी मिसाल के तौर पे घुटन हो रही है, वेर एवर यू आर, तो एक इंसान की वो एक्सप्लोरिंग की इनेट नेचर हमेशा रहेगी. So do you think that, having said that, do you think that for this particular field, you need to be, or in order to become an entrepreneur, be it about Resicam, your experience there, or being, coming from that field of work where people and hospitality and catering to others, meant there was a be-all, end-all of it. Do you think that being an extroverted personality, an enterprising personality is a must-have? Are introverts having no hope? नहीं. To begin with, I was an introvert to begin with. Okay. ठीक है जी. OA लेवल के दिनों में मेरे सिर्फ 1 या 2 दोस्त होते थे. ठीक है, ज़्यादातर हम उस ज़माने में MSN होता था, तो मैं ज़्यादातर जो है ना MSN पे उनसे बातें करता था, हल्का फुल्का ऑर्कुट होता था, और मैं अपने कमरे में ही समाया हुआ होता था. Okay. अगर मुझे बचपन में बाहर जाना होता था ना, तो मैं रेनबो सेंटर जाया करता था सिर्फ CD लेने के लिए. Okay. ठीक है जी. दुबई के अंदर भी नया नया कंप्यूटर आया था, एंड आई हैड फाउंड माई सॉलेस ओवर देयर. Okay. आई केम टू द कंक्लूजन कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है. तो ये जो एक्सट्रोवर्टेडनेस आप आज देख रही है, ये जो बातचीत आप देख रही है, दैट हैज़ कम थ्रू दिस जर्नी. ठीक है. And do you think it's crucial? It's important? It's imperative for any entrepreneur to be all this? An entrepreneur at the end of the day needs to be adaptive and needs to modify his skill sets. जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे स्किल सेट आपको डेवलप करना पड़ेगा. पब्लिक स्पीकिंग वॉज नेवर माई फोर्टे, पब्लिक स्पीकिंग वॉज नेवर माई डोमेन. जाके कस्टमर को, कंसल्टेंट को सेल्स पिच या सेल्स टेक देना मेरा फोर्टे नहीं था, लेकिन ज़रूरत थी, तो ये स्किल सेट डेवलप करना पड़ा. बिल्कुल. ठीक है जी. तो यही मैं सबको कहूँगा. अगेन वो जैसे मैंने शुरू में कहा था, चलता पुर्जा. ठीक है, यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल एंड यू नीड टू बी अडेप्टिव, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट विल कम थ्रू अ माइंडसेट ऑफ नॉट सेइंग नो टू प्रोफेशनल थिंग्स. ठीक है ना. प्रोफेशनली अगर आपको विद इन द रेल्म्स ऑफ एथिक्स ऑफ कोर्स, ठीक है जी, अगर आपको कोई काम करना है तो आपको इतना ओपन माइंडेड होना चाहिए कि अगर मैं लेट सपोज मेरे बॉस ने मुझे कोई टास्क दिया या क्लरिकल वर्क दिया, अगर नहीं आता ना, मैं सीखूं फिर करूं, लेकिन ना कहूं. ठीक है जी. और एक और चीज़ भी है हमारे जो एक और एंटरप्रेन्योर की, मैं नॉट जस्ट एंटरप्रेन्योर, इन लाइफ इन जनरल जो मैं अक्सर और बेशक देखता हूँ हमारे कल्चर में, अगर कोई शख्स कोई गलती करता है ना तो उसको फौरी तौर पे एडमिट नहीं करता. दिस एंड्स अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ डिफरेंट पीपल, बिकॉज जब उसको पता है कि आपने गलती की, आपको भी पता है आपने गलती की, लेकिन आप मानते नहीं, यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. द बेस्ट थिंग इज दैट यू एडमिट टू योर मिस्टेक एंड देन नेक्स्ट थिंग यू डू इज यू वर्क टूवर्ड्स इट्स रेमेडी rather than making an ego problem. Certainly. ठीक है जी. So the thing about not just entrepreneurs, like professional work in general is you need to learn to admit your mistakes, and you need to learn how to learn. Yes. So again coming back to Denning Law College, और जो मेरी होज़ेफा से भी जो बात हुई थी, मैंने होज़ेफा कहा था यार बच्चों को कोई स्किल सेट नहीं देना, बच्चों को ये सिखाना है कि सीखते कैसे हैं. क्योंकि बच्चों को ये समझ आ गई कि समझते कैसे, तो फिर वो कुछ भी समझ लेगा. बिल्कुल. तो ये अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स टीचिंग एंड टुवर्ड्स, क्योंकि जितनी भी स्किल सेट्स अगर हम आज देख रहे हैं, किसी भी अच्छे करियर काउंसलर से के पास जाएंगे, बोलेंगे मोस्ट ऑफ दी स्किल सेट्स आर गोइंग टू बी ऑब्सोलीट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. मिसाल के तौर पर मुझे सिखाया गया था कि बेटा एक प्लेट इधर रखनी है, 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 तो इस तरह से आप 4-5 प्लेटें उठा के आप कस्टमर को सर्व कर सकते हो. लेकिन बाद में अगर रोबोट्स आ जाते हैं या व्हाटएवर होती है, कोई कन्वेयर बेल्ट पे प्लेट आ जाती है, तो वो स्किल सेट तो मेरा किसी काम का नहीं है. लेकिन अगर मुझे ये समझ में आ गया कि अगली स्किल सेट जो कि वक्त की ज़रूरत है, मैं कैसे सीख लूँ और जल्दी जल्दी उसको अडेप्ट कर लूँ, तो यहाँ पे आपकी जीत है. Right. So that means adaptability with time and its changes. And with the needs of the market. And befriending the technology. Yes. You don't need to fight technology. You need to work with it. Yes, certainly. So I'll just move and, encapsulate the entire conversation.
You have been at the leading edge and at the leading position, in various capacities. A lot of entrepreneurs might be excellent at idea generation. They know exactly what they want to do. They know exactly what they want to create. They are very passionate about their, craft, their thought process. They know that they can actually create a dent somewhere in the market by their product and service. But then comes that they need to understand that there's only going to be, not just them that can function for an entire lifespan of the business. They need to have a team. Of course. And the team becomes, the entire skeleton on which the business stands. You need to have those kind of people. And then people management and personnel management, human resource management all comes into play. You being in the capacity of leadership for such a long time, what do you think we should take away from you? What are your learnings? Any key learnings that you would like to give us, to the audience, to understand what it takes to be a leader? And then wrap up that with any piece of advice you have for the young, thriving professionals out there. Be humble, be positive, and be adaptable. That's what I can say. ठीक है ना? कभी कभी आपको पानी की तरह होना पड़ता है. आपको जिस सांचे में डालें, आपको सांचे में ढलना पड़ता है. तभी आपको जो है सक्सेस मिलेगी. अगर मैं डे वन से रिजिड होके चलूँगा कि यार मैं सो एंड सो हूँ, मेरी तो सो एंड सो एजुकेशन एंड सो है, सो यू विल हैव टू बी वेरी लकी टू एक्चुअली थ्राइव एंड सर्वाइव इन दिस कम्पिटिटिव वर्ल्ड. सो अगेन बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ज़रूरत होती है, कुछ किचन की, कुछ की, लेकिन at the end of the day, and secondly, as I said, you need to do what makes you happy as well. Yes. ठीक है ना? So maybe you become like water, but in that whatever आपकी, अच्छा एक और चीज़ है, जो भी सिचुएशन में हो ना, अपने आप को खुश रखना सीखें. ये चीज़ मैंने बहुत देर से सीखी, क्योंकि जब शुरू के 3, 4, 5, 7, 8 साल जब business was not doing so well, I was a very bitter person. Anybody will be. Yes, I was making money. And up now in hindsight, when I look into it, that was a very wrong thing to do. I did not have to be so bitter. But sir, do you think that it is because you were coming from a privileged background that, you didn't feel that big of a hit? What about those who really want to establish something and they are not making money? Not everybody will be born equal on planet Earth. Let's make it very clear. ठीक है ना? Everybody will have their own journey, right? So आपका जो भी starting point है as an individual, you will have to make the best out of that situation. मैं यही कहूँगा आपको. मैं ठीक है, मैं प्रिविलेज बैकग्राउंड से हूँ और था, ठीक है, बिकॉज, लेकिन मेरे वालिद साहब नहीं थे ना. मेरे वालिद साहब ने तो बहुत बेसिक से, उन्होंने तो पता नहीं कितने साल नौकरी करने के बाद 1994 में अपना कारोबार शुरू किया. उसके बाद 2010 में प्रोडक्शन में आए, ठीक है ना. लेकिन एटलीस्ट व्हाट ही डिड वाज, एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट, व्हाट आई वुड रिकमेंड एवरीबडी एल्स टू डू इज, इफ यू कैन नॉट मेक इट, एटलीस्ट यू कैन सी दैट पॉजिटिव लाइट इन योर चिल्ड्रन देन. ठीक है ना? दैट कैन बी दैट सेविंग ग्रेस. My question was primarily on you leading in various capacities and भाई मैं आपको skills. अपनी एग्जांपल दे दूं कि भाई शुरू में तो मेरे फड्डे होते थे, कभी कभार तो माँ बहन की गालियाँ भी हुई है कंपनी के अंदर. ठीक है जी, लेकिन इन सब चीज़ों से हमने सीखा है. ठीक है ना? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनीबडी इन अ लीडरशिप पोजिशन which I've learned in very expensive ways is number one, to stay calm. Okay. फौरी तौर पे आपने जवाब नहीं देना, ठीक है. पहले सिचुएशन को असेस कर लो और उसके बाद एक तरीके से जो है ना चीज़ों को एड्रेस करें. अक्सर और बेशतर हम जल्दी जवाब देने के चक्कर में फौरी तौर पे चीज़ों को एड्रेस कर लेते हैं. दैट इज़ एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव. तो ये चीज़ जो है ना, नॉट जस्ट फॉर एंटरप्रेन्योर, फॉर एवरीबडी, बट स्पेशली फॉर दोज पीपल who are self-employed. Many times you don't need to give an immediate response to all the problems that come. Sometimes, of course, for technical issues, of course, that immediate response is required. But when it comes to organization behavior and something which is to do with emotions, I would suggest everybody, especially entrepreneurs, need to keep their emotions in check. Right. And that is exactly your learning as a leader also, in order to manage, a squad that works for you behind your we are a team of 150 plus on official payroll. Wow. उसके बाद अगर contract की मैं labor ले लूँ तो we are a massive organism right now. ठीक है ना? An organism, फिर वो उसको manage करना भी अपने अंदर फिर एक काम है. But again,
not just myself, this being a family, my father being involved, I have again being privileged that I have had somebody, क्योंकि मैं शायद 20 साल आगे नहीं देखता, मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की है, ठीक है ना, लेकिन जो मेरे वालिद साहब की एक्सपर्टीज़ है वो अगले 20 साल देखने की है। लेकिन मैं हमेशा अपने वालिद साहब को भी एक चीज़ कहता, अब्बा आप आज, अच्छा माय फादर इज़ अ ड्रीमर राइट, तो अगेन वो अल्लाह ताला कॉम्बिनेशंस बनाता है ना, तो मैं अपने अब्बा को हमेशा कहता, अब्बा 20 साल की देख लो, आज की देख लो, आज ये आग लगी हुई है, इसको सुलझा लो। अब वो शायद उस वक्त आज की आग को उस तरीके से नहीं सुलझा पाते, ठीक है ना, वो 20 साल आगे भी जी रहे, ठीक है ना, दैट इज़ वेयर अ गुड बैलेंस कम्स इन बिटवीन फादर एंड सन। सो मैं छोटी छोटी चीज़ें मसले आज वो इग्नोर नहीं, वो फायर फाइटिंग आज हम कर लेते ताकि वो 20 साल आगे का विजन जो है हम अचीव कर सके, क्योंकि मेरे पास वो विजन नहीं है, विजन उनके पास है, लेकिन मेरे पास आज की तारीख में उन चीज़ों को तरीके से एग्जीक्यूट करने की और जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने की कैपेबिलिटी है। और मैं हमेशा एंटरप्रेन्योर्स को कहता हूँ, इवन अगर आपके पास 20 साल आगे का विजन नहीं है ना, तो उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आई सजेस्ट एवरीबडी टेक इट बेबी स्टेप्स एंड टेक इट वन डे एट अ टाइम। एंड अगेन अनदर वेरी फंडामेंटल लेसन, स्पेशली बीइंग इन पाकिस्तान, प्लीज़ डोंट ओवर थिंक थिंग्स। रात को लेटे हुए हो तो ये नहीं सोचो कि यार ये भी मसले, ये भी मसले, ये भी मसले, भाई थोड़ा सा अपने आप को, ब्रेन को भी रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ये सबक बहुत बड़ी मुश्किल से मैंने सीखा। एंड अगेन माय वाइफ हैड अ बिग रोल इन प्लेइंग इनटू दैट। शी आल्सो कोच्ड मी एज वेल। अगेन हैविंग अ गुड लाइफ पार्टनर इन योर जर्नी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो शी एक्चुअली कोचेज मी कि यार देखो, आप घर आ गए हो, आप रिलैक्स्ड हो, आप सुकून से रहो, बार बार यू डोंट नीड टू कीप ऑन रिपीटिंग दैट सेम स्टोरी इन योर हेड ओवर टाइम, same film it. otherwise you will be very bitter. No, you cannot. You become dysfunctional, I think. Exactly. It takes you away from the core purpose. Exactly. Do you work 24 hours, sir? What is a day in your life looks now? Because the students might be very interested to know that what is a day in a CEO's life. सुबह आने का ज़रूर टाइम है, लेकिन वापसी जाने का टाइम नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ की बहुत, ये पहले तो मैं घर पे भी काम कर लिया करता था, और इसके आने के बाद तो कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है। लेकिन मैंने खुद अब ये करना शुरू किया कि जब मैं ऑफिस में बैठा हूँ ना, तब मैं काम करूँगा। मैं ऑफिस में 10 घंटे बैठूँ, 12 घंटे बैठूँ, 18 घंटे बैठूँ, लेकिन जब मैं घर आ गया और मेरे बेडरूम में हूँ ना, देन इट्स स्विच ऑन स्विच ऑफ। ये अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है बहुत अरसे बाद, बहुत मेहनत और बहुत, otherwise you will end up becoming a corporate maniac very soon. You will end up becoming mentally retarded. Yes. Thank you so much, sir. It was a wonderful conversation. We learned a lot. I think the audience would have gained a lot of insight into becoming an entrepreneur. What are the challenges one goes through in economic times like these? How we're supposed to navigate our own businesses? Like these very, very, these pearls of wisdom that you gave, that just be pragmatic, just be adaptable to changes, just befriend technology, be composed, have a little bit of patience, don't overthink, have some sort of an understanding where you are developing yourself in the course of your business also, and then also as a human being. Exactly. So thank you so much for this. We learned a lot. I personally did, because I also have these little side gigs going on in my life apart from the work that I do. So I think it was a fantastic, very, very constructive conversation that we had today, and I think it's going to be doing wonders in the life of those who are just students right now, is stepping into the field of their expertise, their own professions. Majority of them are very inclined towards becoming entrepreneurs and starting up their own things. So thank you so much once again. We had a fantastic time. Thank you very much. Thank you so much. I'll see you again in the next episode of Career Talks. I hope you will make the most of this conversation, and this is going to give you those essentials that you actually require to reach the top of your game. Thank you so much, and I'll see you next time.